हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे माइक्रो कंट्रोलर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होते हैं, एमसीक्यू टाइप होते हैं या वन लाइन आंसर क्वेश्चंस होते हैं। उनकी बात करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। पहले हम बात करते हैं फरवरी 2021 की, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स या वन वर्ड क्वेश्चंस है पार्ट ए के अंदर। पहला क्वेश्चन है, इन 8051 प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर हैज़ डैश बिट। प्रोग्राम काउंटर कितने बिट का है? 16 बिट का। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, RET इंस्ट्रक्शन इज़ यूज टू रिटर्न फ्रॉम द एंड ऑफ ए सब रूटीन, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ये सब रूटीन से वापस आने के लिए इंस्ट्रक्शंस है। थर्ड वन इज़, ए कॉल is an unconditional call instruction, true or false? Yes, it is true. 8051 has dash counters of dash bit each, कि 8051 में कितने काउंटर है और कितने बिट के हैं? 8051 has 2 counters and each of 16 bit. Next one is, 8051 has dash input output port. There are 4 ports and each port is of 8 pin, total 32 pins. Internal RAM of 8051 is of dash bytes. Internal RAM is of 128 bytes and ROM is 4 kilobytes. A PIC has dash bit program counter. PIC is Peripheral Interface Controller, एक माइक्रो कंट्रोलर है जिसके अंदर 13 बिट का प्रोग्राम काउंटर होता है। तो आंसर इज 13 बिट प्रोग्राम काउंटर। इन PIC माइक्रो कंट्रोलर, INTCON स्टैंड्स फॉर, दिस इज इंटरप्ट कंट्रोल रजिस्टर। RISC स्टैंड्स फॉर, RISC इज रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। And next question is, 8051 is a dash bit microcontroller. This is 8-bit microcontroller. These are part A and part B is 1 line, 2 line answer. First one is, define opcode. An opcode, short for operation code, means its full form is operation code, is a code that specifies the operation to be performed by a central processing unit, CPU, कि जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करता है CPU, वो ऑपरेशन कोड होता है, ऑप कोड कहते हैं उसको। What is the function of compiler? The primary function of compiler is to translate human readable source code into machine executable instructions. Write the full form of LCD. LCD is liquid crystal display. What is the function of ALE? The function of ALE is ensuring accurate and reliable communication between microcontroller and external memory or peripheral. Next question is, what is the use of timer in 8051? 8051 में टाइमर की क्या यूज़ है? Uses of timer in 8051 is to generate precious time delay in software, to generate PWM, pulse width modulation signal, which are used to control the speed of motor, brightness of LED, etc. Can measure frequency of external signal or execution time of specific code segment, and its use is can count external event. These are some uses of timer in 8051. Write about Harvard architecture. There are 2 type of architecture. One is Harvard and second one is von Neumann architecture. Harvard architecture is a computer architecture design that separates the memory of instruction and data
मीन्स हार्वर्ड आर्किटेक्चर के अंदर दो तरह की मेमोरी होती है, वन इज़ डाटा मेमोरी एंड सेकेंड वन इज़ इंस्ट्रक्शन और कोड मेमोरी. राइट द फुल फॉर्म ऑफ PSW. PSW इज प्रोग्राम स्टेटस वर्ड. नेक्स्ट इज व्हाट इज CISC. जैसे हमने अभी ऊपर देखा था RISC. RISC इज रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर एंड दिस CISC इज complex instruction set computer. It refers to a type of computer architecture where instructions can execute several low-level operations or perform complex tasks in a single instruction. Next question is, what is the difference between microprocessor and microcontroller? Microprocessor are general purpose CPU used in systems requiring high computational power, while microcontroller are integrated systems on chip designed for embedded control applications requiring low power consumption and compact form factors. मतलब माइक्रो प्रोसेसर वो क्या है, जनरल पर्पस CPU है जिसके अंदर हम काफ़ी सारी कंप्यूटेशंस कर सकते हैं. पर माइक्रो कंट्रोलर क्या है, वो एक सिंगल चिप कंप्यूटर है जिसके अंदर हम एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट वन इज, इन विच एड्रेसिंग मोड द सोर्स एंड डेस्टिनेशन इज ए रजिस्टर. मतलब जिसमें सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों ही रजिस्टर होते हैं, वो कौन सा होता है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू हेक्स कोड. टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू हेक्स कोड, ए कंपाइलर और एन integrated development environment IDE with inbuilt compiler is typically used. मतलब या तो कंपाइलर को हम यूज़ करेंगे या IDE with inbuilt compiler हम यूज़ करेंगे. Which directive is used to assign a numerical value in place of symbol? There are 5 types of directive in 8051 and one is equate directive, EQU directive, जो कि एक सिंबल को एक न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ रिप्लेस करता है. दीज आर वन लाइन और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस ऑफ आवर फरवरी 21. अब हम नेक्स्ट पेपर देखते हैं जो कि एक नंबर के हैं, डेट इज़ सितंबर 2021 का. इसके अंदर पहला जो पार्ट है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में है. तो पहला क्वेश्चन है, द एड्रेस स्पेस ऑफ 8051 इज डिवाइडेड इनटू 4 डिस्टिंक्ट एरिया, इंटरनल डाटा, एक्सटर्नल डाटा, इंटरनल कोड, एक्सटर्नल कोड. यस, हमारे पास जो मेमोरी होती है वो 4 तरह की होती है, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल डाटा और इंटरनल कोड. एक्सटर्नल को एक्सटर्नल डाटा एंड एक्सटर्नल कोड के रूप में हम डिवाइड करते हैं. तो दिस वन इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन माइक्रो कंट्रोलर एग्जीक्यूट सम अर्थमेटिक ऑपरेशंस देन द फ्लैग बिट ऑफ विच रजिस्टर आर अफेक्टेड. फ्लैग बिट हमारा फ्लैग रजिस्टर या प्रोग्राम स्टेटस वर्ड के अंदर ही होता है. तो ऑप्शंस आर PSW, SP, DPTR, PC. PSW इज प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, SP इज स्टैक पॉइंटर, DPTR इज डाटा पॉइंटर रजिस्टर, PC इज प्रोग्राम काउंटर. तो फ्लैग रजिस्टर हमारा प्रोग्राम स्टेटस वर्ड के अंदर होता है, तो इसका राइट आंसर इज PSW. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which is the only register without internal on-chip RAM address in MCS51. मतलब ऐसा कौन सा रजिस्टर है जिसका इंटरनल रैम का कोई एड्रेस नहीं होता माइक्रो कंट्रोलर 8051 के अंदर. डेट इज़ प्रोग्राम काउंटर. स्टैक पॉइंटर का भी एक एड्रेस होता है, पर्टिकुलर एड्रेस होता है, डाटा पॉइंटर का भी एक एड्रेस होता है और टाइमर रजिस्टर का भी एक एड्रेस होता है, पर प्रोग्राम काउंटर का कोई भी एड्रेस स्पेसिफाई नहीं होता 8051 के अंदर. तो राइट आंसर इज प्रोग्राम काउंटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Which operator is most important while assigning any instruction as register indirect instruction? रजिस्टर इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में हमारे रजिस्टर के अंदर एक एड्रेस दिया होता है जहाँ से हमने डाटा को लेना होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिंबल @. तो इट इज़ राइट आंसर इज C1 @. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 इनपुट DAC हैज़ डैश. 8 इनपुट DAC इज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हैज़. Option is 8 discrete voltage level, 64 discrete voltage level, 124 discrete voltage level, 256 discrete voltage level. This 8 input DAC का मतलब होता है 2 power 8 different type of voltage level. 2 power 8 is 256. So right answer is D1, 256 discrete voltage level. Next question is, if we push data onto the stack, then the stack pointer. जब हम डाटा को स्टैक पॉइंटर में डालते हैं तो स्टैक पॉइंटर की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज विद एवरी पुश. हमने देखा था ना कि स्टैक पॉइंटर पे जैसे ही हमने डाटा को एंटर किया तो पहले स्टैक पॉइंटर एक एड्रेस इंक्रीज करता है, फिर वहाँ पे उस डाटा को स्टोर करता है. तो आंसर इज इंक्रीज विद एवरी पुश. Next question is, how many bytes of bit addressable memory is present in 8051 based microcontroller? हमने ये देखा था कि रैम एरिया के अंदर पहला जो था वो जनरल पर्पस एरिया था. सेकेंड वन इज़ बिट ऑब्लिक बाइट एड्रेसेबल एरिया था जो कि हमारा 16 बाइट का था. तो राइट आंसर इज 16 बाइट्स. उसके बाद हमारा आता था रजिस्टर बैंक्स जो कि 4 थे. 8 बिट के 8 रजिस्टर एक बैंक में होते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर आर अवेलेबल फॉर डिजाइनिंग ए डिवाइस दैट इज़ अवेलेबल टू वर्क ऑन इट्स ओन? अभी हमने ऊपर देखा था कि 2 तरह के आर्किटेक्चर होते हैं, हार्वर्ड आर्किटेक्चर एंड वॉन न्यूमैन. सो राइट आंसर इज 2. टू आइडेंटिफाई दैट विच की इज़ बीइंग प्रेस्ड वी नीड टू, कि हमने अगर कीपैड से कोई की प्रेस की है उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी की है, तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा? ग्राउंड पिंस ऑफ द पोर्ट 1 एट ए टाइम, कि हमने जो एक पोर्ट की एक की को एक बार में हमने ग्राउंड करना होगा. तो राइट आंसर इज B1. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द क्लॉक सोर्स फॉर द टाइमर? जो क्लॉक सोर्स है टाइमर के लिए वो कौन सा होगा? हमने माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक क्रिस्टल अप्लाई किया हुआ है जिससे हमें क्लॉक साइकिल मिलती है. तो राइट आंसर इज फ्रॉम द क्रिस्टल अप्लाइड टू द माइक्रो कंट्रोलर. एंड सेकेंड पार्ट इज 1 लाइन आंसर टाइप क्वेश्चंस इन सितंबर 21. तो next question is, which bit of the flag register is set when output overflows to the sign bit? जो आउटपुट है वो ओवरफ्लो होती है तो कौन सी बिट सेट हो जाती है? ओवरफ्लो बिट. PIC माइक्रो कंट्रोलर यूजेस हार्वर्ड आर्किटेक्चर. यस, माइक्रो कंट्रोलर के पास हमारे पास 2 तरह की मेमोरी होती है, डाटा मेमोरी एंड कोड मेमोरी. और हार्वर्ड आर्किटेक्चर इज आल्सो हैविंग 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, डाटा मेमोरी एंड कोड मेमोरी. while von Neumann architecture has only one type of memory which is used as data memory as well as code memory. Define opcode, ये क्वेश्चन हमारा पीछे भी आया है, सेम क्वेश्चन फरवरी 21 के अंदर. The opcode short for operation code is the code that specify the operation to be performed by a central processing unit CPU. What is the width of data bus? डाटा बस कितने बिट की होती है? डेट इज़ 8 बिट की. असेंबली लैंग्वेज इज़ रेफर्ड टू एज ए लो लेवल लैंग्वेज. यस, असेंबली लैंग्वेज इज़ ऑलवेज लो लेवल लैंग्वेज. ट्रू. वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RTC? RTC इज़ रियल टाइम क्लॉक. 8051 microcontroller has one serial port. True or false? Yes, 8051
having one serial port, and that is UART, Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Define program counter. Program counter, that is PC, is a 16-bit register that holds the address of the next instruction to be fetched and executed. प्रोग्राम काउंटर क्या है कि 16 बिट का एक रजिस्टर है जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है जो हमारी एग्जीक्यूट होनी है. नेक्स्ट इज एक्सपेंड PSW. PSW इज प्रोग्राम स्टेटस वर्ड. Next is 8051 microcontroller has 4 kilo/64 kilobytes of RAM. We know that 8051 microcontroller has 128 bytes of RAM and 4 kilobytes of ROM. This question is wrong. Question is wrong. Option may be 128 bytes of RAM or something else. There is no option for 128 bytes, but its RAM is of 128 bytes. Otherwise, question is of 4 kilo/64 kilobytes of ROM. So right answer is 4 kilobyte of ROM. These are multiple choice questions or short answer type questions of September 21. अगला पेपर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.